Hello everyone. So we were doing different types of biasing circuits. We did the fixed bias circuit and we also did the collector to base bias circuit. Now today we will start with bias circuit with emitter resistance, or you can say the emitter feedback bias circuit. Now the circuit is essentially the same as the fixed bias circuit except with the difference that a resistance RE is included in the emitter टर्मिनल ना। जो हमारा ये एमीटर फीडबैक बायस सर्किट है, इसमें क्या है, ये सर्किट जो है हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट की तरह ही है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस आर ई जो है वो अब इंक्लूड कर दिया है इन दी एमीटर टर्मिनल। दिस इज आर circuit diagram. Here we have this power supply VCC that is connected to the collector terminal through the resistance RC, and it is connected to the base terminal through the resistance RB. Initially in the fixed bias circuit, we have grounded the emitter terminal. Now here the emitter terminal is connected to the resistance RE before it is grounded. Okay, so here this is the additional factor, the emitter resistance RE. Now we will see how this resistance RE जो है will improve the stability of the operating point. So first we'll apply the Kirchhoff's voltage law to the base emitter loop, or you can say to the input section of this circuit. Now what will be this? VCC is equal to IBRB plus VBE plus IERE equal to VCC. VCC is equal to IBRB plus VBE plus IERE. This we have obtained using the Kirchhoff's voltage law to the base emitter loop. So VCC is equal to RB into IB plus VBE plus RE into IE. That means VCC is equal to the voltage across the resistance RB plus the base emitter voltage plus the voltage across the resistance RE. Okay, IB is the base current, IE is the emitter current. So we can write RB/IB as VCC minus VBE minus RE into IE. So IB becomes VCC minus VBE minus RE/IE upon RB. Now what we know? We know that this base emitter voltage is very small as compared to VCC. We know that we require a small biasing, small forward biasing to the emitter base junction. Why we require so? Because here we are considering the emitter as the common terminal. So to forward bias the emitter base junction, we are taking the small value of VBE. Why? Because we have to reverse bias the collector base junction as well, so that our transistor can work in the active region. And in order to reverse bias the collector base junction, we need the voltage across the collector to be large as compared to the voltage across the base, so that our collector base terminal remains reverse biased. So VBE जो है इसको हम small रख रहे हैं, ठीक है, 0.7 volt है if we are considering silicon transistor, and around 0.3 volt है if we are considering the germanium transistor. So we can neglect VBE in this expression as compared to VCC. So what will be our base current now? IB will become VCC minus RE into IE upon RB. Now what happens? We know as the temperature increases, जैसे जैसे हमारे जो ट्रांजिस्टर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, then we know that minority charge carriers जो है वो produce होंगे. Why? Because of the increase in temperature, covalent bonds will break. That will result into the more number of carriers. So this results in the increase in reverse leakage current because of the increase in minority charge carriers due to the increase in temperature. तो reverse leakage current अगर बढ़ेगा, so that means हमारा जो collector current है IC वो भी बढ़ेगा. IE is equal to IB plus IC. So if IC is increasing, then that means emitter current will also increase. ठीक है, अगर हमारा emitter current IE बढ़ेगा, इसका मतलब अगर ये IE हमारा बढ़ेगा, so that means जो हमारी voltage है, voltage drop across the
रेजिस्टेंस RE, दैट इज RE इंटू IE जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। दिस शोज दैट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रिवर्स लीकेज करंट आर कलेक्टर करंट विल इंक्रीज, and because of the increase in collector current eventually our emitter current will also increase. So if emitter current will increase, then that means the voltage drop across RE, that means RE into IE, that will also increase. VCC जो है हमारा फिक्स्ड है, RB जो है हमारा बेस रेजिस्टर वो भी फिक्स्ड है। अगर हमारा IE बढ़ेगा तो RE इंटू IE हमारा बढ़ेगा, इस वजह से क्या होगा, हमारा जो बेस करंट है दैट विल डिक्रीज। अगर ये वाला फैक्टर हमारा बढ़ता जाएगा, सो दैट मीन्स द बेस करंट IB जो है इट विल डिक्रीज, दैट वी कैन सी इजिली फ्रॉम दिस रिलेशन 8.16। अगर हमारा IB बढ़ेगा, सॉरी IB अगर हमारा कम होगा, now what is the relation between IC and IB? IC is equal to beta into IB, where beta is the current gain. So if IB will decrease, then that means IC will decrease. तो हमारा ये इसी तरीके से हो गया जैसे हमने इससे पहले वाले बायसिंग सर्किट में देखा था, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट जो है हमारा वो बढ़ रहा है। हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करना है, तो हमें कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज IC और VCE को बढ़ने नहीं देना है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है हमें कोशिश करना है दैट इट दे विल नॉट वेरी बोथ IC एंड VCE. So here it shows that when we increase the temperature, then the collector current increases, ठीक है। But what happens because of the increase in collector current, emitter current increases, so RE into IE increases. Because of increase in RE into IE, IB जो है that decreases. Because of the decrease in IB, IC जो है that is equal to beta into IB, it will also decrease. तो इसका मतलब है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो कलेक्टर करंट में वेरिएशन आ रहा है, उस वेरिएशन को इतना नहीं बढ़ने दे रहा ये रेजिस्टेंस RE, ठीक है। सो दिस शोज दैट collector current is not allowed to increase to the extent that it should result due to the increase in temperature. तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट जितना बढ़ना चाहिए ये उतना बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो बेस करंट है IB दैट इज डिपेंडिंग ऑन IE, ठीक है। अगर हमारा IE बढ़ेगा तो IB हमारा कम होगा, जो IC को इतना बढ़ने नहीं देगा जो वो बढ़ता बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा टेम्परेचर की वजह से IC जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हमें ये देखना है करंट गेन की वजह से क्या IC पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, सो करंट गेन बीटा जो है इट plays a very important role in increasing the collector current. So we'll see with the variation in current gain beta, will there be any variation in collector current or not? अगर वेरिएशन होगा then that means we cannot stabilize the operating point, और अगर वेरिएशन नहीं होगा then that means we have stabilized the operating point. Now the circuit also provides stabilization when transistor has to be replaced by another one of the same type but having different value of beta. Now ये क्या कहता है कि ये जो हमारा एमीटर फीडबैक बायस सर्किट है, ये सर्किट जो है सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन के साथ नहीं बीटा के साथ भी स्टेबलाइजेशन शो करता है। अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं बाय अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ सेम टाइप बट उसकी जो वैल्यू है बीटा की वो डिफरेंट है, उस केस में भी हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि बीटा चेंज होने की वजह से भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये स्टेबलाइज रहता है या नहीं। Now what is current gain? We know beta is equal to the ratio of output current to the input current. For the common emitter circuit, the output current is collector current IC and the input current is IB. We know IE is equal to IB plus IC. So IC जो है that can be written as IE minus IB. So beta becomes IE minus IB upon IB. Now it can be written as beta into IB plus IB equal to IE. Now substitute this relation in the equation number 8.15.
हमारी जो इक्वेशन है 8.15, यहाँ पर जो है वील सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ IE एज बीटा IB plus IB. So what we'll get here, VCC is equal to RB into IB plus VBE plus RE into IE. Here IE जो है इसकी जगह पे we'll substitute बीटा IB plus IB. तो ये टर्म हमारी हो जाएगी RE into बीटा IB plus RE into IB. देखो RE into beta IB plus RE into IB, simply substituting the value of IE in the equation number 8.15. So now this equation can be rewritten as IB into, we are taking IB common, IB इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो IB अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास होगा RB plus beta into RE plus RE, that is equal to VCC minus VBE. VBE जो है हमारा, it is very small as compared to VCC, so we can neglect VBE in comparison to VCC, so we can write VCC minus VBE as just VCC. सो हमारा IB क्या हो गया यहाँ से, VCC अपॉन RB प्लस बीटा RE प्लस RE. यहाँ पर इसको अगर मैं RE को कॉमन लूँ, इट बिकम्स बीटा प्लस 1 इंटू RE. बीटा जो है हमारा, इट इज वेरी लार्ज, सो आई कैन नेग्लेक्ट 1 इन कंपैरिजन टू बीटा. सो आई विल एंड अप विद दिस इक्वेशन ऑफ द बेस करंट IB एज VCC अपॉन RB प्लस बीटा इंटू RE. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी कैसे आई, हमने IE जो है उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ करंट गेन एंड बेस करंट, फिर हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इन द इक्वेशन 8.15. फिर इस इक्वेशन में हमने यहाँ डिनोमिनेटर में RE को अगर कॉमन लेंगे देन वील गेट बीटा प्लस 1. तो यहाँ पर हमने 1 जो है उसको नेग्लेक्ट किया इन कंपैरिजन टू बीटा, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग हमने क्या किया, हमने VBE को नेग्लेक्ट किया इन कंपैरिजन टू VCC. तो IB हमारा आ गया VCC अपॉन RB प्लस बीटा इंटू RE. Now what is collector current? IC हमारा होता है बीटा इंटू IB. If we are neglecting the reverse leakage current, considering it to be very small, तो substitute the value of IB over here. We get IC is equal to beta into VCC divided by RB plus beta RE. Now this is equal to, if I'll divide both the numerator and denominator by beta, then this IC can be written as VCC upon RB upon beta प्लस RE. ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है, इट कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस करंट गेन बीटा इफ दिस RE बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन RB अपॉन बीटा. अगर हमारी ये वाली टर्म जो है ये बहुत ज्यादा होगी इस टर्म से, देन इन दैट केस वी कैन से दैट हमारा जो कलेक्टर करंट है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा. तो अगर हम सर्किट में किसी ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दें ऑफ सेम टाइप बट हैविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा, देन इट विल नॉट इफेक्ट द कलेक्टर करंट. ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, वी कैन नॉट मेक RE टू बी वेरी वेरी लार्ज. अगर RE को हम ज्यादा लेंगे तो उस वजह से जो है दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी. सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट मेड RE to be very very greater than RB upon beta. So in that case we can say that हमारा जो collector current है it will no longer be constant with respect to बीटा. ठीक है, ये हम अभी आगे देखेंगे. अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारा कलेक्टर करंट है इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा इफ दिस टर्म RE becomes very very greater than RB upon beta, or you can say that if this base resistance becomes very small, in that case also जो हमारा कलेक्टर करंट है it can become independent of beta. Now we'll apply the Kirchhoff's voltage law to the current to the collector emitter loop. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, now we are applying over here, VCC will be equal to ICRC plus VCE plus IERE equal to VCC. ठीक है, VCC हमारा कितना होगा, that will be equal to the sum of voltage across this resistance RC, that is IC into RC, VCE
and the voltage across this resistance RE, that is IE into RE. So we'll get this equation VCC is equal to IC into RC plus VCE plus IE into RE. I hope अब सबको clear है how we can apply the Kirchhoff's voltage law to the base emitter loop and to the collector emitter लूप. ठीक है, हम इस टाइप के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है अब बहुत बार जो है यूज कर चुके हैं, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा कि ये इक्वेशंस हम किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, so the total supply voltage VCC will be dropped across this, some voltage will be dropped across this RC, then we have the collector to emitter voltage, then some voltage drop across this resistance RE. Okay, so from here VCE can be written as VCC minus RC plus RE into IC. ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, ये देखो, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है. IE हमारा क्या होता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. यूजुअली IE और IC जो है हमारा इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, और जो बेस करंट होता है इट इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स. सो वी कैन नेग्लेक्ट बेस करंट इन कंपैरिजन टू IC एंड वी कैन से दैट द एमीटर करंट IE इज नियरली इक्वल टू IC. तो यहाँ पर हमने IE जो है इसको भी रिप्लेस कर दिया बाय IC. तो हमारे पास VCE आ गया, द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCC minus RC plus RE into IC. देखो, ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए what we need for the operation of a transistor, we need operating point where the transistor operates. ठीक है, और ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, the IC VCE value on the DC load line. तो यहाँ पर जो है if I can calculate the collector current using this equation, and I can say that this collector current is independent of the variation in temperature, वो हम देख चुके हैं. And if we say that this emitter resistance becomes very large as compared to RB upon beta, then in that case our collector current becomes independent of this current gain beta, and then we can calculate this collector to emitter voltage using this equation by substituting the value of collector current over here. VCC हमारा fixed है, RC हमारा fixed है, RE हमारा fixed है. तो ये दोनों equations हमें क्या बताती हैं, equation number 19 and 20. It shows that the operating point can thus be determined using the relations 19 and 20. ठीक है, IC जो है हमारा it can be kept constant by making RB upon beta constant. देखो यहाँ पे IC लिखा हुआ है, वहां कटा हुआ है थोड़ा सा. The operating point can thus be determined using the relations 8.19 and 8.20. अब हमें देखना है can we stabilize this operating point. उसके बाद हम कहते हैं IC जो है हमारा वो कांस्टेंट हो सकता है बाय मेकिंग RB अपॉन बीटा कांस्टेंट एज द रेजिस्टेंस RE. अब हम ये चीज अभी डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी मेक और कैन वी मेक RB अपॉन बीटा कांस्टेंट. नेक्स्ट ये क्या कहता है, जो हमारा रेजिस्टर है RE, इट इज प्रेजेंट इन बोथ द इनपुट एज वेल एज आउटपुट सर्किट्स. इनपुट सर्किट में भी हमारा RE आ रहा है, जब हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था टू द इनपुट लूप, वहां पे भी हमारा RE था, और जो हमारा आउटपुट सर्किट है उसमें भी RE आ रहा है. इसका मतलब ये जो हमारा RE है, दिस इज द फीडबैक रेजिस्टर, इट इज प्रोवाइडिंग फीडबैक to this circuit. So we can say that here the resistance RE is present in both the input as well as the output circuit. So a feedback occurs through this resistance, and this circuit is also called the current feedback biasing circuit. The circuit is not often used as the collector current is not independent of beta. अभी हमने इसमें क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस हम कलेक्टर करंट जो है उसके वेरिएशन जो है उसको काफी हद तक रोक सकते हैं. और वो हमने कैसे रोका था, विद द हेल्प ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस RE. ठीक है, जो हमने रेजिस्टेंस RE इंट्रोड्यूस किया था, इसकी वजह से जो हमारा बेस करंट था इट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन RE इंटू IE. हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन एमीटर करंट. ठीक है, अब ये जो हमारा एमीटर करंट बढ़ रहा है, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस RE. इस वजह से हमारा जो IB है, द बेस करंट, वो डिक्रीज होता है, और उसके डिक्रीज होने की वजह से इट विल नॉट अलाउ द कलेक्टर करंट टू इंक्रीज टू द
to the large extent, ठीक है. IB जो है हमारा it decreases, so because of the increase in emitter current IB decreases, that will not allow the collector current to increase much, ठीक है. तो इस वजह से we can say that ये जो हमारा resistance RE है, it is helping in keeping the collector current constant because of the increase in temperature. It is helping, or you can, I'm saying it again, this emitter resistance RE is helping to keep the collector current constant, which can vary with the increase in temperature. तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस RE है, ये हेल्प करता है IC को ज्यादा वेरी ना होने में, जो वेरी हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर. कैसे हेल्प कर रहा है रेजिस्टेंस RE? बाय प्रोवाइडिंग द एमीटर करंट IE, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इस सर्किट को हम करंट फीडबैक बायसिंग सर्किट भी बोलते हैं. आगे जाके जब हम फीडबैक पढ़ेंगे इन एम्पलीफायर्स, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इन डिटेल व्हाट इज अ वोल्टेज फीडबैक, व्हाट इज अ करंट फीडबैक. जब हम when the signal feedback depends upon current, then it is called the current feedback, ठीक है. तो यहाँ पर अभी मैंने ये बताया why this is called the current feedback biasing circuit. नेक्स्ट थिंग, अब हमें ये देखना है क्या हमारा कलेक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. अगर कलेक्टर करंट हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर वेरिएशन एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द करंट गेन बीटा, देन इन दैट केस वी कैन इजीली से दैट आवर ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड. लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इस सर्किट को हम यूजुअली यूज नहीं करते. व्हाई? क्योंकि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो हमारा स्टेबल हो पा रहा है, लेकिन वो करंट गेन बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है. इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन बीटा. कैसे? देखो, हमने 8.19 रिलेशन से देखा था, जो हमारा IC था कलेक्टर करंट, वो आया था VCC अपॉन RE प्लस RB अपॉन बीटा. तो हमने बोला था ये जो हमारा कलेक्टर करंट है इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा इफ एंड ओनली इफ हमारा ये जो एमीटर रेजिस्टेंस RE है इट बिकम्स वेरी मच ग्रेटर देन RB अपॉन बीटा. तो ये कंडीशन अचीव करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर या तो हमारा एमीटर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या हमारा बेस करंट बहुत स्मॉल हो. और ये जो दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे, दीज आर नॉट प्रैक्टिकेबल, दीज आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, अगर RE हमारा ज्यादा होगा, इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस RE वो भी ज्यादा होगा, RE into IE, ठीक है. हाई वैल्यू ऑफ RE मीन्स देयर इज लार्ज DC वोल्टेज अक्रॉस इट. तो इसका मतलब वी रिक्वायर अ हाई DC सोर्स VCC. VCC हमारा क्या है? दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, दिस इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE प्लस IERE. टोटल अप्लाइड वोल्टेज VCC में से कुछ पार्ट जो है वो हमारा ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दिस एमीटर रेजिस्टेंस RE. तो अगर मैं RE को बढ़ाऊंगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस RE वो भी बढ़ेगा. तो दैट मीन्स हमें अपना VCC बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. तो इस वजह से हम RE को ज्यादा लार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, वी रिक्वायर अ स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग टू दी एमीटर बेस जंक्शन. एमीटर बेस जंक्शन को स्मॉल बायसिंग की जरूरत है, सो दैट आवर कलेक्टर बेस जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस्ड और इट विल रिमेन रिवर्स बायस्ड इन दिस कॉमन एमीटर सर्किट, ठीक है. वी नीड स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग. तो अगर हम हाई वोल्टेज कर देते हैं VCC की और RB को अगर हम स्मॉल कर दें, एक चीज क्या है हमारी, ये हाई करेंगे अगर हम सोर्स VCC को, इन दैट केस हमारी जो फॉरवर्ड बायसिंग है उसके बढ़ने के चांसेस है, ठीक है. दूसरी चीज, अगर मैं RB को स्मॉल कर दूं तो भी हमारा RE जो है इट बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन RB अपॉन बीटा. पर अगर मैं RB को स्मॉल कर दूंगी तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस बेस रेजिस्टर RB वो भी कम हो जाएगा. इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ दी हमारी वोल्टेज है फ्रॉम दिस सप्लाई VCC दैट विल गो टू दी बेस
टर्मिनल, और इन दैट केस वी कैन से दैट हमारी जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो बढ़ जाएगी। और अगर हमारी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई तो इन दैट केस हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स बायस नहीं रहेगा, वो फॉरवर्ड बायस हो सकता है। सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस रहे, फॉरवर्ड बायस ना हो। तो उसके लिए हमें एक दूसरी डीसी सप्लाई जो है वो यूज करनी पड़ेगी बेस सर्किट में, और स्मॉल डीसी सप्लाई जो है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, कि ताकि हमारा जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस रहे और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहे, हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही वर्क करे, वो सैचुरेशन रीजन में ना जाए। ठीक है, so we can say that this condition RE very greater than RB upon beta cannot be achieved practically. ठीक है, it is not possible to make RE to be very greater than RB upon beta, क्योंकि अगर हम RE को बहुत ज्यादा करेंगे तो हमें VCC को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, we need a high DC source VCC। और अगर हम आरबी को कम कर देंगे तो उस केस में हम कॉमन सप्लाई वीसीसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में फिर हमारी फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। सो फॉर दिस वी रिक्वायर अ सेपरेट डीसी सप्लाई टू द बेस सर्किट। ठीक है, सो दीज टू options are not possible, so this condition cannot be achieved practically। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अगर हमारी ये condition achieve नहीं हो सकती, that means for this biasing we cannot make collector current to be independent of beta। अगर collector current हमारा independent of beta नहीं है, that means we cannot keep the stabilized operating point। हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो stabilized नहीं रहेगा, so this type of biasing is not used। ठीक है, नेक्स्ट वील सी द वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायसिंग सर्किट। ये हमारी जो बायसिंग है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायसिंग इन द सर्किट। सबसे ज्यादा हम इस बायसिंग का यूज करते हैं। हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायसिंग सर्किट वी कैन कीप द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। ठीक है, सो दिस वील सी इन द नेक्स्ट क्लास।